Hello guys. Thank you first of all for to everyone for joining. Today we will be learning about Git and GitHub, and Kanish Tyagi and Shatabato, aka Rick, will be helping us throughout the journey. So over to you, Kanish and Rick. Hello everyone, myself Kanishk Tyagi, and today I will tell you about the Git and GitHub from the scratch. First, we will do the installation process, and after that, Rick will tell you some commands and how to use the Git and GitHub. So let's get started. So first of all, we have to know that what is Git. So Git is a free and open source distributed version version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is a version control system that helps you to track and manage multiple versions of your files. Okay, so basically, in simple words, Git is similar to your Google Drive. Okay, like जैसे आप लोग Google Drive पे अपना कोड Google Drive पे अपना फाइल्स को स्टोर करते हो, सेम ऐसी सीन इधर भी होता है. Git पे अपना अपना फाइल अपने किसी भी प्रोग्राम का कोड उस पे डाल के स्टोर कर सकते हो, और इसमें वर्जन भी डाल सकते हो. लाइक आपका फर्स्ट आपने कोई आपने अपना कोई ऐप लॉन्च किया, उसके बाद उसके कुछ मंथ्स बाद या कुछ वीक्स बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, उसका वर्जन 2 आ गया, तो आप उसको वर्जन 2 डाल सकते हो उस पर. ठीक है, बिल्कुल ऐसी सिमिलरली वर्जन 3 वर्जन 4. सो बेसिकली सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है. इंस्टॉलेशन along with me. If you are using Windows, then use this one. If you are on Mac, then use this one, and if you are using Linux, then use this one. So I'm floating link in the chat box. So I'm अब using ये तो मेरे Windows, को so please mute yourself. So I'm using Windows, so I will be clicking on the window. Okay. Uh, it will be downloading. सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं होता है गिट क्या? Can कैन you यू repeat? प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज गिट एंड गिटहब या बेसिकली गिट इज सिमिलर टू योर गूगल ड्राइव. लाइक जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल्स स्टोर करते हो ना, ऐसे ही बिल्कुल गिट पे अपना अपना कोड स्टोर कर सकते हो इन अ प्रॉपर वे. इन अ लाइक इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. लाइक आपका कोई ऐप है, आपने ऐप रिलीज किया, आपका फर्स्ट वर्जन है वो ऐप का. ठीक है, आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, लाइक उसमें जैसे आपका नॉर्मल एक ऐप है, उसमें आपने डेट्स वगैरह या लॉगिन विद गूगल वगैरह ये ऑप्शन ऐड करे, तो आपका वर्जन 2 लॉन्च हो गया, तो आप फिर उस पे गिटहब पे डाल सकते हो. ठीक है, लाइक ये गूगल ड्राइव की तरह नहीं है, बिल्कुल सिमिलर. इसमें आप लोग जैसे आपका लाइक आप अपने लैपटॉप पे आपने कोड स्टोर कर रखा है, बाय चांस ऐसा होता है कि वो कोड डिलीट हो गया, तो आप पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जिसने आपने कमिट करा होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप रिवर्ट बैक कर सकते हो. ठीक है, यस सर सो बेसिकली आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो मेरे साथ अभी. लाइक आई एम इंस्टॉलिंग द गिट. Just install Git with the default properties. Okay. Any other questions? Excuse me, sir. Yeah.
Can you explain what is forking on GitHub? Yeah, we will tell you about everything. Okay, just wait and watch. Just click on the finish, and it's a terminal that is called git bash, and it is similar to the Linux terminal. So all the Linux commands will perform here. Okay, so let's get started. First I will tell you how to make the account on the GitHub. Okay, this is my account on the GitHub. Okay, and this is like this, everything is done by with the coding. Okay, just let me sign out. Just click on this sign up button. Wait a minute. Yeah, Bharat, Git Bash is a terminal similar to the Linux terminal. So all the Linux terminal commands working here. Okay. First, first of all, put up your email ID. Like I'm putting my another email ID. And put up your password. And then make one new username. Like if this one is not available, so I'm using another one. So this one is available. Okay, just type Y here and just verify using this start puzzle and use the click the spiral galaxy. Okay, this Sir, one. can you repeat Which one? What I have to sir, repeat? Can you tell me? how to log in Git? Yeah, I'm telling you how to sign up. Okay, like how to register Oh yes yourself sir, first. yes sir, यही Just first, रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं. just first enter your email ID, then your password, then your username, then Y. Sir, just look my desktop Yeah, site sir. Wait, okay. wait. So I haven't seen your lecture on Linux, so should I see this first or see that one? What? Can you repeat? I'm not able to get you. सर मैंने आपकी लिनक्स वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो Okay. पहले उसे Sir, अटेंड करें या Yeah, गिटहब no वाली चलने problem. दूं? No problem, no problem. Kunal, just wait a minute. Not here, you have to log in the last link I have floated in the chat. Open sir, that link. Open the हमने GitHub. इंस्टॉल तो Open the किया. GitHub. Open the GitHub, not the Git. Okay. GitHub. Yeah, GitHub. हमें लगता है हमने Git को सिर्फ इंस्टॉल किया जैसे आपने बताया था. नहीं, वो Git तो इंस्टॉल करना है, उसके बाद GitHub पे अकाउंट बनाना है. GitHub. तो Just type it on Google GitHub. एक मिनट. ये लिंक. हाँ हाँ फर्स्ट वाला. ओके सर, हम करते हैं. हाँ इसमें सर बना ले अकाउंट. एक्सक्यूज मी सर. सर गिट का वो वर्जन क्या है? 2.34.1. You देख can वैसे download मैटर anywhere. नहीं करता, बट अगर तू कोई इंस्टॉलर यूज कर रहा है देन इट विल इंस्टॉल द लेटेस्ट वन फॉर यू. ओके ओके. I have made my account already, so I'm just logging in. You can just verify your account and just log in with your details. Okay.
Okay, just wait a minute. Okay, I have to just verify my email. Just wait a minute, guys. I'm verifying my email. It's initializing my desktop, and I will log out from here and sign in from another account. Okay, this is the basic desktop, and like here it's an overview of all of your repositories and what work you have done till now. Like you can do this intro, like what are you working in, which field is working, and which languages and tool you are using, the current streak. Okay, like your graph, you can just make a repository with with your username, and it will help you out to make this one. Okay, like this one. Okay, after this I will tell you about the git bash. Just first you have to type these command git config. Like first you have to configure yourself. Like first you have to tell your computer like I am the user, myself Kanishk Tyagi. So use these command for you. Just type your username here. Okay, just type your username here. Just wait a minute, I have done a mistake. Just wait a minute. I think A config फिर hyphen global. wait a minute. Sir, you missed the T. What? You missed the T. Okay. Wait a minute. सर यहाँ पे क्या फिल करना है? Rick and Ritvik, can you help him out? Y कर दो, Y टाइप कर दो. Let's just do it. While. अब ये क्या आ गया? ये पजल है. हाँ. इसमें पिक द स्पाइरल गैलेक्सी. ये है ना सर? गोला सा तो यही दिख रहा. वही है गोला. Top right. If you type this command after this, like it will confirm that you are the user. Okay, and with same, if you type your email, then it will show your email. Okay. And like these are the basics command. Like ls, it will tell like all the folders in the in the directory you are. It will tell all the folders they are in this. And if you type like cd, and if just wait a minute. Yeah, yes. सर थोड़ा जूम इन कर दो टर्मिनल में. Okay, wait a minute.
It is visible now. सर थोड़ा font size. Yes sir, yes sir. Okay. Yeah. CD means in directory. First, write CD, and after this, write the folder name. Like I have specified here, E drive of my computer, and now E drive is opened here. Uh, if I have to check like where I am in my directory, just type the pwd command, and it will tell you where you are in your computer, in which directory. Okay, and if you're using ls command, then it will locate all the folders in the in that drive in which you are. Okay, if you type cd and after that programming सर जस्ट मी programming करना है, but सर जस्ट मी करना है. just me, where you have to do the just me. Just me, just me. Okay, okay. Just स्टूडेंट type 3 or 4 words here and just press the tab key. It will complete the whole complete the line. Okay. सब टिक करना है सर यहाँ पे. Can you ask your doubts afterwards, Sachin? Okay, fine. After this, you can again type the command pwd, and it will tell you where you are in which directory and where in which folder. Okay, and after this, git command will tell the Rick, are you there? Yeah. So let's start with the git commands and all. Let me share my screen real quick. Okay, so I hope it's visible, right? And also you are free to ask doubts when we are doing all these steps. So Just let's do go to GitHub. just do these things along with us. Actually, if you will be getting any doubt, then you can ask here. Okay. Yes. So this is GitHub, and we will be doing all the commands and all the GitHub stuff in tandem. So let's do the basic thing in GitHub, which is to make a new repo, right? तो मैंने new दबाया, तो इसका नाम रखते हैं dummy code because it's just some dummy, right? So हमने ये किया, ये सब टिक करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बस पब्लिक कर दो, प्राइवेट कर दो, तुम्हारी मर्जी करके हमने क्रिएट रिपोजिटरी किया एंड ये हमारा बन गया. सो अभी इस रिपो में कुछ नहीं है, सो इट्स टेलिंग अस कि अच्छा मतलब रिपो में कैसे क्या करना है, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग. हमारा ये जो मैंने फोल्डर बना के रखा है डमी कोड, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है. तो फिर जैसा अभी कनिष्क ने कहा था कि एलएस से तुम्हें सारे फाइल्स दिखते हैं, बट इसमें कोई फाइल्स ही नहीं है, राइट? सो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें गिट इनिट करना है. गिट इनिट मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर इसमें मैं काम करूंगा, इसमें मैं गिट यूज करूंगा, तो मैं गिट इनिट में यूज कर रहा हूँ, राइट? तो मैंने गिट इनिट किया एंड आई जस्ट प्रेस्ड एंटर and it says that yes, I have initialized empty git repo at this folder. All right, so now if I do ls a means it will show all the hidden folders. So like you can see that git folder is here, तो मतलब git अभी आ गया. So now what I can do is I can create a new file. So let's create a new file. Suppose dummy, no, let's do readme.md, because readme.md is the like matlab it's the file where you explicitly tell कि अगर तुम्हारे किसी को तुम्हारे कोड कोई रन कर रहा है तो उसको कैसे क्या करना है, कोड के बारे में बताना, all that. So readme.md and let's just start typing something. So let's type dummy code. Wait a minute, Rick. Guys, he's using the Linux. Okay, like you can do same with the
Linux, like Git with the Git bash terminal. Okay, just हाँ हाँ install your Vim. Okay. so actually I'm using WSL, which is very similar to Git bash, so doesn't matter. So I did hello, right? And oh, by the way, you can use any text editor. You can use VS Code, you can use Sublime. I'm using Vim because ये सब command line में ही हो रहा है, तो फिर काफी सही सर रहता है. एटम यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं. Anything. You can even use Notepad if you want, if you're brave enough. so मैंने इस फाइल को मैंने सेव किया. तो अब देखो, अब फिर मेरे पास readme.md है. अब मेरे पास readme.md है, बट गिट को पता नहीं है. देखो, गिट इज दिस थिंग दैट कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी फाइल, राइट? उस फाइल का हर एक वर्जन एंड ऑल उसको ना, मतलब ट्रैक करता है. तो फिर गिट को अभी तक पता नहीं है कि अच्छा हाँ एक फाइल है readme.md, राइट? तो अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा, गिट स्टेटस इज योर मतलब मतलब सबसे हेल्पली मतलब मोस्ट हेल्पफुल कमांड इन गिट, राइट? सो मैंने गिट स्टेटस से मुझे ना पता चलता है कि अच्छा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे. सो फिर मैंने किया गिट स्टेटस और मैंने एंटर मारा. सो इट सेज देखो एक फाइल है readme.md, वी आर नॉट ट्रैकिंग इट येट, राइट? ये अभी भी अनट्रैक्ड है. तो अभी हम क्या करें? ओके, तो मैं क्या करूंगा ताकि गिट इसको ट्रैक कर पाए कि हाँ ये एक फाइल है. तो मैं इसको git add readme.md मैंने बोला कि भाई देखो ये जो फाइल है readme.md, इसको तुम ऐड कर लो. ऑल राइट, मैंने एंटर मारा. सो नाउ इफ आई से git status, it would say एक्सक्यूज मी कि सर, गेट हाँ हाँ रैंडमली मतलब गेट रैंडमली किसी फाइल को ट्रैक नहीं कर सकता. वी हैव टू गिव नो, कमांड दैट इज टू एड इट. यू हैव टू ऐड इट. गिट तुम्हें ओके सर. बता सकता कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा फाइल्स है जो हम अभी ना ट्रैक नहीं कर रहे. सो लाइक डू यू वांट टू ऐड इट? देखो यहाँ पे वो बता रहा था, देखो अनट्रैक्ड फाइल्स. इसने बताया कि गिट ऐड करो टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड, राइट? तो रैंडमली वो ट्रैक नहीं कर सकता. तुम्हें बताना होगा कि भाई देखो ये फाइल है, इसको ऐड कर लो. तो अब वो कह रहा है कि हाँ इसको हमें ना कमिट करना है. तो न्यू फाइल readme.md. अब जाके मैं क्या करूंगा कि मैं गिट कमिट करूंगा. गिट कमिट मींस भाई देखो ये एक वर्जन है, राइट? ये मतलब बेसिकली कमिट्स को मान लो चेंज के तरह, राइट? मतलब ये मैंने चेंज किया. तो बेसिकली मैंने गिट कमिट किया और मैंने बोला. और हाँ, हर एक कमिट का ना, ओके मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट हर एक कमिट में तुम ना वो डाल सकते हो, एक तुम ना मैसेज डाल सकते हो कि उस कमिट में तुमने किया क्या था, राइट? मैं भी धीरे धीरे आऊंगा कि ये सब काम में क्यों आता है. तो गिट कमिट है, मैंने लिखा कि फर्स्ट फाइल, राइट? फर्स्ट फाइल, और मैंने एंटर मार दिया. ये बता रहा है कि अच्छा एक फाइल चेंज्ड. उसमें मैंने दो दो लाइन मैंने इंसर्ट किया और मैंने रीडमी को मैंने क्रिएट किया, राइट? तो अब मैंने गिट लॉग किया. गिट लॉग का मतलब ये है कि मैं देख सकता हूँ कि अभी तक कितने कमिट्स हुए, क्या हुए हैं. तो हर एक कमिट का ये चीज होता है, ऑथर होता है कि उस कमिट को किसने लिखा है. तो ये मेरा ईमेल आईडी है. और सो सो एवरी कमिट हैज दीज पार्ट्स. उसमें डेट होता है कि कब हुआ था वो, उस कमिट का मैसेज कि वो कि उस कमिट में तुमने किया क्या था. और एक कमिट आईडी, ये एक ना बड़ा सा एक हैश होता है. हर एक कमिट के पास ना एक ऐसा एक ना यूनिक आइडेंटिटी होता है. तो हर एक कमिट को तुमने ऐसे तुमने डिनोट कर सकते हो, राइट? ये हम बाद में जब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तब हम देखेंगे. बट बेसिकली ये है, ये हमारा एक कमिट है, ये सारी चीज है. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने बोलना है कि हाँ ठीक है, हमने कमिट वगैरह कर दिया. अब यहाँ पे गिटहब का क्या खेल है? सो गिटहब क्या करता है? गिटहब एक एक जगह है जहाँ पे तुम कोड को तुम अपलोड कर सकते हो. देखो यहाँ पे तुम गिट में तुम ना अकेले काम कर रहे हो, बट गिटहब के थ्रू बहुत सारे लोग तुम्हारे गिट रिपो में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ. जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, राइट? यहाँ पे अगर मैं गिट लॉग करूंगा तो तुम देख पा रहे हो ये वाला कमिट मैंने किया है, ये वाला कमिट मैंने किया है. अच्छा ये वाला कमिट किसी और बंदे ने किया है, राइट? ये अच्छा ये वाला कमिट मैंने किया, राइट? लाइक ये भी कमिट मैंने है. फिर ये वाला
किसी और ने, कार्तिक ने किया है। और फिर वहां पे क्या था, वहां पे एक बंदा था मंकी, उसने किया। सो द थिंग इज कि ऐसे इतने सारे काफी लोग काम कर सकते हैं। और तुम लोग देख रहे हो कमिट मैसेजेस कितने नीट एंड क्लीन है। मैं कमिट पढ़ के मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा यार कमिट क्या करता है, अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स के टेबल को ठीक कर रहा है, अच्छा अच्छा ओके राइट। तो ये सब समझने में ना इजी होता है कि लोग क्या सर इस सर इसका मतलब कोई भी आपका फाइल को मतलब एडिट कर सकता है, मतलब वो कोई भी कमिट कर कर सकता सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। है। मतलब सर your तो voice is यहाँ पे lagging, sir. तो I think he's asking in another sense, like in on the internet, anyone can access your file, like, No, no, right? no, no, not accessing, sir. As we yeah, we can actually work together. It is like that only, Yeah, so yeah, that, yeah. yeah, हम्म, sure. it is like that. बट सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब मेरे को सिर्फ 5 बंदों के साथ काम करना है और उन 5 ही बंदों में मेरे को मतलब देना है अपना प्रोजेक्ट, मैं और किसी को नहीं देना चाहता, तो फिर मैं वो प्राइवेट करके अपलोड कर सकता हूँ ना? तू प्राइवेट करके भी अपलोड कर सकता है। तू ऐसा भी कर सकता है कि तूने देख रिपो में ना ये होता है, रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ। अगर हम सेटिंग्स Like में इनको गए, कंट्रीब्यूटर वगैरह एक्सेस वगैरह दिखा दो. हाँ 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 वही 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 देख, मैनेज एक्सेस में गए तो ओके यहाँ पे अ, ठीक है, यहाँ पे मैं पास तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कौन कौन लोग इससे डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। Rick, your voice is lagging. हेलो। हाँ, Yeah, it's fine मैं now. मैं कह रहा था कि हम लोग मैनेज में हम लोग जाके हम लोग ये सब कर सकते हैं जस्ट टू सी कि मतलब हम किस किन किन को हम ऐड कर सकते हैं और वो डायरेक्टली उसमें एडिट कर सकते हैं या नहीं। बट मान ले एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तेरे पास परमिशन नहीं है एडिट करने का, बट तू चाहता है एडिट करना, तू बोलना चाहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ना ठीक करना चाहता हूँ, तो उसको ना पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। पुल तो रिक्वेस्ट, यस पुल सर. रिक हाँ, तो वो पुल रिक्वेस्ट कैसे करना है वो सब हम थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जो गेट का सेशन है इट्स सपोज टू बी अ बिट बेसिक राइट। तो अभी तो हम लोग लाइक मेन हम लोग बेसिक्स में फोकस करेंगे। बट हाँ, गिट और गिटहब काम यही है कि एक साथ काम करना एंड ऑल राइट। तो And we will send you resources for further learning, okay? For the हाँ, like for the hard one, like for the advanced one. यस। सो अब हमें गिटहब में इसको अपलोड करना है। अब ये क्या है ना कि ये जो लिंक है मतलब ये जो लिंक है ये है मतलब अपने प्रोजेक्ट का गिट रिपो, मतलब इसका लिंक है गिटहब में। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमको देखो, हम लोग इसमें कमिट करते जाएंगे, फिर बार बार हम लोग इसमें डालते जाएंगे। तो बार बार हम लोग तो ये तो लिंक हम डाल नहीं सकते ना कि हाँ फिर से इस लिंक तुम टाइप कर लो और बोल लो यहाँ पे जाके अपलोड करो, यहाँ पे जाके अपलोड करो। तो गिट क्या करता है, गिट को हम बोल सकते हैं कि देखो इस ना लिंक का एक नाम दे देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि गिट रिमोट। रिमोट मतलब ये हमारा लोकल मशीन है और ये एक रिमोट सर्वर है, मतलब ये कहीं और है। तो फिर इसलिए इसको ना रिमोट कहते हैं। तो गिट रिमोट ऐड, मतलब मैं एक मैंने रिमोट जगह को मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं इसका नाम कुछ रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसका नाम मैंने ओरिजिन रख रहा हूँ बिकॉज ये स्टैंडर्ड है। जो तुम्हारा जो मेन जो गिटहब में जो जगह है उसको ना ओरिजिन कहने का मतलब दैट्स अ स्टैंडर्ड। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, फिर मैं लिंक में डाल देता हूँ। मैंने लिंक डाल दिया, फिर मैंने एंटर मारा। फिर अब मैंने क्या किया कि ओके ठीक है मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गेट पुश ओरिजिन मास्टर राइट। अब मैं ये मास्टर मैं ना बाद में मैंने एक्सप्लेन करूंगा। बट ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं कहना चाहता हूँ कि गिट पुश मतलब मैं पुश करना चाहता हूँ अपना कोड गिटहब में। और मैं गिटहब का मैं कौन सी जगह पे पुश करना चाहता हूँ, ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब क्या है, ये वाला लिंक। तो गिट समझ गया कि अच्छा मेरे को यहाँ पे मुझे पुश करना है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर एंड एंटर। तो उसके बाद ये फिर मेरे से पासवर्ड मांगेगा। एंड अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग रीलोड करते हैं।
ये देख रहे हो डमी कोड हेलो, राइट? अगर हम इस फाइल में जाके देखें, देखो यही है डमी कोड हेलो। अगर हम रॉ रॉ करके हम देख रहे हैं, यही तो हमने टाइप किया था ना, डमी कोड हेलो। तो फिर ये हमारा हो गया एक, राइट? तो तो अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया मतलब ये तो हो गया अपना कोड अपलोड करना। अब जैसे मान लो क्या है कि मैं ऐसे ही मैंने ब्राउज कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने अपनी मैं कुछ रिपोज देख रहा हूँ, एंड जैसे मान लो मैंने ये वाला मैंने ये देखा रिपो कि अच्छा ये वाला रिपो है, राइट? अच्छा मेरे को ना डाउनलोड करना है। सो व्हाट आई वुड डू इज, मैं कोड में गया एंड मैंने लिंक को मैंने कॉपी किया, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया कि गेट क्लोन, क्लोन डाउनलोड करना, राइट? क्लोन क्लोन रफली मींस डाउनलोड करना। गेट क्लोन, फिर मैंने लिंक डाला, फिर मैंने एंटर मारा। अभी बोल रहा है कि अच्छा अब पासवर्ड डालो। तो अब देखो इसका काम क्या है, तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई डाउनलोड करते वक्त पासवर्ड की क्या जरूरत है, राइट? अब जैसे थोड़ी देर पहले मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रही है कि आप इसको private कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लिंक्स है जो प्राइवेट है, जिसको बस कुछ ही लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे ये तो पब्लिक है, बट मतलब किसी किसी के गिट के इंस्टॉलेशन में हमेशा पासवर्ड मांगता है। सो अभी मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। अभी देखो ये डाउनलोड हो रहा है। आ, तो फिर अ, इसको क्लोन करना है, क्लोन। तो हम क्लोन करना देख लिया, और अभी हम आ, रुको देखते हैं। गेट क्लोन हमने देख लिया, हमने गेट ऐड देख लिया, गेट कमेंट देख लिया। अब हम ब्रांचेस पे आते हैं, राइट? सो ये तो अभी डाउनलोड हो रहा है, ये छोड़ो। तो अभी हम लोग क्या है ना, ओके तुम लोग को याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, हमने ऐसा कुछ टाइप किया था, राइट? तो मैंने कहा था कि हम लोग मास्टर पे हम लोग बाद में आएंगे। ये मास्टर क्या है? मास्टर इज अ ब्रांच। तो ब्रांच क्या है? जो सबसे जो मेन ब्रांच होता है ना, मतलब तुम लोग इसको ऐसे तुम अपने ट्री के तरह मानो। मतलब मैं इसमें मैं कोड करते जा रहा हूँ, कोड करते जा रहा हूँ, और मैं कोड कर रहा हूँ, और मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं कोड कर रहा हूँ और फिर मैंने कमिट कर रहा हूँ। तो ऐसे करते 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 एक ना मतलब ब्रांच बन गया। अब मान लो तुम लोग पूछोगे कि अच्छा ब्रांच मतलब तो ऐसे भी तो हो सकता है कि और भी ब्रांच जैसा है। बिल्कुल। जैसे मान लो मैं तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ एक ना वेबसाइट पे, एंड फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग एक ना लॉगिन पेज हम लोग ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब क्या है कि अगर मैं लॉगिन पेज अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मतलब कनिष्क भी वहाँ पे काम कर रहा है, और कनिष्क होम पेज पे काम कर रहा है, लॉगिन पेज पे काम कर रहा हूँ। अब मतलब मैंने यहाँ पे मैंने वो किया, मैंने यहाँ पे मैंने कमिट किया, उसने भी वहाँ पे कमिट किया। अब मान लो जो कमिट कर करके जो वो जो ब्रांच बन रहा है, मेरा मास्टर और फिर उसका मास्टर, दोनों का मास्टर डिफरेंट हो गया। तो फिर हम लोग जब हम लोग उसको पुश करने जाएंगे तो गिट को समझ में नहीं आएगा कि वो कि मतलब वो किसका कोड एक्सेप्ट करे, राइट? मतलब जब हम लोग गिटहब में जब हम लोग अपलोड कर रहे होंगे, इसलिए लोग क्या करते हैं, हर एक फीचर एक ना ब्रांच में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसको मर्ज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच हम बनाते हैं, गेट ब्रांच टेस्ट, राइट? तो अगर तो फिर हमने अभी एक ब्रांच बनाया टेस्ट, तो अभी हम लोग गेट स्टेटस में जाके देख सकते हैं कि हम अभी भी हम लोग मास्टर में। हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, गेट गेट चेकआउट, और फिर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने गेट स्टेटस किया तो कह रहा है कि अच्छा हम लोग अभी टेस्ट में, राइट? तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास अभी भी रीडमी है, राइट? रीडमी डॉट एम डी है। तो मैंने क्या किया, मैंने विम में मैं गया, और मान लो मैंने डमी कोड की जगह मैंने लिख दिया डमी कोड्स। फिर मान लो मैंने यहाँ पे मैंने और मैंने कुछ ऐड कर दिया, हेलो दिस इज हाई फ्रॉम पी क्लब, एंड मैंने इसको सेव करके मैंने क्विट कर दिया, राइट?
तो यहाँ पे मैं अलग काम कर रहा हूँ टेस्ट ब्रांच पे. I can always go back to master. I can always go back to master. And मैंने क्या किया, मैंने vim, okay, wait. Right, मैं काम करता, मैंने इसको मैंने कमिट कर देता हूँ. Vim get commit. एक मिनट, मैं पहले ऐड करूंगा इसको. Get add readme.md get commit m I changed readme. राइट, तो अगर मैंने गेट लॉग किया तो गेट लॉग में मुझे बता रहा है, ओके देखो, गेट लॉग मुझे बता रहा है कि जो ओरिजिन का जो मास्टर ब्रांच है, अगर मैं यहाँ पे गया, देखो ये है. और रुको हम लोग कहाँ पे थे पहले, हम लोग 2001 हम लोग डमी कोड में थे, राइट. सो दिस इज आवर ओरिजिन. मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिन का जो मास्टर ब्रांच है वो अभी भी इसी कमिट पे है, और हमारा अपना जो मास्टर ब्रांच है वो भी इसी कमिट में, और हमारा जो टेस्ट ब्रांच है वो अभी यहाँ पे आ गया, राइट, इस वाले कमिट पे. तो अब मैंने क्या किया, मैंने गेट चेकआउट मैंने मास्टर किया. फिर मैंने क्या किया, विम readme.md. तुम देख रहे हो अभी भी ये वहीं पे अटका हुआ है, राइट, क्योंकि जो मास्टर ब्रांच का लॉग है उसमें अभी भी एक ही कमिट है, राइट. तो अभी भी एक ही कमिट है. यहाँ पे मैंने फीचर पे मैं काम कर रहा हूँ. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो ये वाला ब्रांच जो मैं काम कर रहा था, जो 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 मेरा जो टेस्ट ब्रांच था, मान लो यहाँ पे जो मेरा काम था ये ना कंप्लीट हो गया, एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने टेस्ट ब्रांच में मैंने काम किया है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, मास्टर में ऐड हो जाए. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड से गेट मर्ज टेस्ट, राइट, गेट मर्ज टेस्ट, और मैंने एंटर मारा. तो अब मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर vim readme.md के, देखो ये सब चेंजेस हो गए. सो ऐसे क्या होता है कि लोग जब जनरली एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो मास्टर ब्रांच इज द मतलब ब्रांच जिसमें सबसे लेटेस्ट कोड है, और जो भी कोई न्यू फीचर्स पे काम कर रहे हैं सबके अलग ना ब्रांचेस होते हैं, राइट. जैसे मैं तुम लोगों को मैं तुम लोगों को एक वो दिखाता हूँ. जैसे मान लो जैसे मैं इसमें मैंने कभी कभी मैंने काम करता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ, राइट. दिस इज द मास्टर ब्रांच. इसमें सबसे अप टू डेट कोड है, कोई भी इसको डाउनलोड करके काम कर सकता है. अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो कितने सारे ब्रांचेस हैं, राइट. मतलब कितने सारे लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट फीचर्स पे. एंड फिर मैं तुमको पुल रिक्वेस्ट दिखाता हूँ. जैसे ये वाला एक फीचर है, ये जो फीचर है ये वाला ब्रांच का यिम रिपीट. जब इसका काम हो जाएगा तो इसको मास्टर में ना मतलब मर्ज कर देंगे. तो अब तुम लोग समझ पा रहे होगे कि जब भी कोई कुछ काम करता है तो फिर सब लोग अपने ब्रांचेस में काम करते हैं, जब काम हो जाता है हम उसको मर्ज कर देते हैं. तो और एक चीज भी होता है कि मान लो हमने एक ब्रांच को हमने मर्ज किया, और मर्ज करते वक्त हमने देखा कि ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, सपोज देयर इज दिस अनदर ब्रांच जहाँ पे एक लाइन को तुमने ना एडिट किया, और मास्टर में भी तुम लोगों ने एक लाइन को तुमने एडिट किया, और फिर जब तुम लोग मर्ज कर रहे हो तो फिर गेट को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा मैं कौन सा वाला लाइन में मैं रखूं मास्टर में. तब ना उसको ना मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहता है. तो अभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे ठीक ठाक करना है वो सब अभी हम लोग ये सब सिखाएंगे नहीं, बट वो काफी इजी होता है. किसी को कुछ पूछना है तो फिर वो हमेशा ग्रुप में पूछ सकता है, अगर किसी को, क्योंकि अभी चांसेस आर यू गाइस आर वर्किंग अलोन, राइट. तो फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा नहीं. तो We ये will सब मैंने, share, guys. We will be sharing resources you can learn in for हाँ advanced level there. this is basically us giving you the push, the first push, कि अब तुम लोग को समझना है कि अच्छा तुम लोग को सीखना क्या, राइट. बट तुम लोग को ब्रांच समझ में आ गया, ब्रांच यूज्ड फॉर implementing some feature and then you just merge it to master, राइट. कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनका मेन ब्रांच को
मतलब जो उनका जो मेन ब्रांच होता है उसका नाम उन लोग ना मास्टर नहीं रखते, उन लोग मेन रखते हैं। कुछ कुछ इसका ड्रामा है तो फिर तुम्हारी मर्जी, मेन करो या मास्टर करो, राइट। तो फिर ये सब हो गया इसका। अ, हमने फिर मर्ज के बारे में बात कर दिया। रीबेस भी रीबेस भी ना मर्ज के तरह ही होता है। अभी आई डोंट थिंक रीबेस लाइक बताना चाहिए। अगर तुम मर्ज कर रहे हो और फिर वहां पे रीबेस हो सकता है तो फिर गिट ऑटोमेटिकली ना रीबेस कर देता है, बट तुम लोग हमेशा तुम लोग सर्च कर करके देख सकते हो। इसलिए मैंने ना यहाँ पे मैंने डाल दिया है ताकि जब तुम लोग इस प्रेजेंटेशन को जब तुम लोग देखोगे, क्योंकि लोग लिंक मांगते हैं, तो तुम लोग सर्च कर करके देख सकते हो। तो हमने चेकआउट कर लिया, ये कर लिया, ब्रांचेस कर लिए, हमने रिमोट कर लिया, स्टेटस कर लिया, लॉग कर लिया। अब जीसी बाकी है। चलो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब क्या है पता है, जैसे हमने अभी पुश किया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को मैंने एडिट कर, अब पता है गिटहब की पता है सबसे सही बात ये है कि जैसे मैं यहाँ पे मैं जैसे एडिट कर रहा हूँ और मैं कमिट्स कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे भी मैंने एडिट कर सकता हूँ और मैं मतलब वेब में ही मैंने कमिट्स कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, रुको पहले इसको मैंने पुश कर देता हूँ, राइट। तो ये हमने एडिट किया। मैं कह रहा हूँ गेट पुश ओरिजिन मास्टर। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमने काम किया है वो तुम ओरिजिन के मास्टर में डाल दो। एंटर, पासवर्ड डालो और फिर अभी हम लोग रीलोड करते हैं। हेलो दिस इज हाई फ्रॉम पी क्लाउड। अब पता है क्या है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। हेलो दिस लाइन इज डन फ्रॉम गिटहब, मैंने पे कर दिया। मैंने कमिट का जो मतलब यहाँ पे जो हम लोग कमिट मैसेजेस डालते थे, तो इसमें मैंने नाम रख दिया कि गिटहब कमिट, और फिर मैंने कमिट कर दिया चेंज। तो अब क्या है, मतलब तुम लोग जब गिट में काम करोगे, जब तुम लोग थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने काम करके उस रिपो में मतलब पुश कर दिया, राइट। जैसे हमने अभी पुश किया, राइट, हमने अभी काम किया एंड देन वी जस्ट पुश द कोड टू गिटहब। अब तुम मान लो तुमने कुछ और काम किया एंड नाउ यू वांट टू अपडेट योर लोकल रिपो। ये जो हमारा जो लोकल रिपो है, तुम चाहते हो कि अच्छा हाँ रिमोट में जो है वही वाला ना मेरे ना लोकल में आ जाए। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सेम, बट पुश की जगह तुम पुल, यू वुड से गेट पुल ओरिजिन मास्टर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई ओरिजिन के मास्टर में जो भी है वो पुल करके मेरे कंप्यूटर में डाल दो। सो मैंने एंटर मारा, पासवर्ड, राइट। अब तुम लोग देखो vim readme.md, हेलो दिस लाइन इज डन फ्रॉम गिटहब। ये जो लाइन जो हमने गिटहब पे किया था ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे जो हमने किया था वो यहाँ पे आ गया, राइट। सो विच इज वाई गिटहब इज यूजफुल। गिटहब क्यों यूजफुल है कि क्योंकि मतलब दिस सर्व्स एज मतलब दिस सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे जो है, यहाँ से तुम लोग मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम यहाँ पे अपलोड कर दो, किसी ने अगर और यहाँ पे काम किया उसको डाउनलोड कर लो, राइट। तो अब तुम लोग समझ पा रहे हो ना कि अगर तुम एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट, तो तुम उनको फोन करके तो बोलोगे नहीं ना कि भाई तूने जो कोड लिखा है वो मुझे भेज दे व्हाट्सएप में, मैं फिर ये कर दूंगा। नो, यू यूज गिट, राइट। तो ये बात है। तो हमने अभी पुश पुल हमने बात कर ली, राइट, पुश पुल मर्ज, अच्छा, रिवर्ट, रीसेट, चेकआउट। अभी मैं तुम लोगों को ओके, सो उससे पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ। मान लो तुम्हें कुछ पता नहीं है, राइट, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज, हेलो सर। हाँ हाँ, सर जैसे आपने गिट मर्ज किया है, हम्म,
तो सर वो किस ब्रांच में मर्ज होगा बाय डिफॉल्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तुम जिस ब्रांच में अभी हो, मतलब जिस ब्रांच से तुम कमांड टाइप कर रहे हो, उस ब्रांच में Yesh, मर्ज can you होगा। mute yourself, please? हाँ यस सर, ओके। हाँ, तो फिर या लाइक ही सेड इट बिकॉज तुम्हारे बैकग्राउंड से ना एम्बियंस नॉइज आ रहा था काफी। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर मान लो मेरे पास कोई एक ब्रांच है और फिर मैं दूसरे ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं जिसमें मैं मर्ज करना चाहता हूँ मैं उस ब्रांच में जाके मैं ना कमांड टाइप करूंगा गिट मर्ज, फिर मैं जिसको मर्ज करना चाहता हूँ, राइट। तो फिर ऐसा नहीं है मतलब कि हमेशा अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ तो फिर वो मास्टर में ही मर्ज होगा। आई कैन ऑलवेज मर्ज टू डिफरेंट ब्रांचेस। छोड़ो ये छोड़ो, मैं रुको, मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गेट चेकआउट टेस्ट, राइट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने टेस्ट को हमने मास्टर के साथ हमने मर्ज किया था। अब हम लोग मास्टर को हम लोग टेस्ट के साथ मर्ज करते हैं, राइट। सो अभी मैं टेस्ट ब्रांच में हूँ, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, गेट मर्ज मास्टर। सो इसका मतलब क्या है, गिट सोच रहा है कि अच्छा ये बंदा टेस्ट ब्रांच में है और ये कह रहा है कि मर्ज मास्टर, मतलब वो कहना चाहता है कि मास्टर को टेस्ट के साथ मर्ज कर दो। ओके, एंटर। एंड अब तुम लोग देखो विम readme.md, अब यहाँ पे भी आ गया, दिस लाइन इज फ्रॉम गिटहब, राइट। सो आई होप दैट क्लियर योर डाउट। यस, यस सर, यस सर। ओके, या सो वही है, यही क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग And क्या guys, डिस्कस। just wait a minute, Rick. And guys, you can do these command in VS Code terminal as well, okay? हम्म, वही। उससे पहले कोई यहाँ पे ना फॉक्स पूछ रहा था, मैं पहले फॉक में ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्क इज बेसिकली, तुम लोग को याद है हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो किसी ने तुम्हें परमिशन नहीं दिया, तो फिर देखो ये जो है, यहाँ पे मेरे पास परमिशन नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे जाके मैं काम करूँ उनके साथ, डायरेक्टली मैं उनके कोड को मैं ना एडिट करूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, ये जो गिट रिपो है ना, इसका मुझे एक एक मुझे ना कॉपी बनाना है, राइट। तो इसके कॉपी बनाने को फॉर्किंग कहते हैं, फॉर्क करना। सो द थिंग इज आई ऑलरेडी हैव अ फॉर्क। ये देखो, पिक 2001, राइट। देखो ये बता रहा है कि दिस ब्रांच इज अप टू डेट विद मेटाब्रेन्स मास्टर। सो लाइक जब मैंने फॉर्क किया तो फिर ना गिटहब को पता है कि मैंने यहाँ से मैंने फॉर्क किया है और ये मुझे बता रहा है कि अच्छा हाँ तुम्हारा ब्रांच अप टू डेट है, राइट। तो फिर यहाँ पे मैंने एडिट करता हूँ सब कुछ जो मैंने एडिट करना चाहता हूँ करके, फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने पुल रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है, राइट। अब मैंने पुल रिक्वेस्ट पे मैं गया, ये वाला पुल रिक्वेस्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है रिक 2001। सो ये वाला जो ब्रांच है ना LB912 ये वाला मेरे फॉर्क का ब्रांच है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो ब्रांच है, जो मतलब ये जो कोड है, इसका जो फॉर्क है, मतलब इसका जो कॉपी है जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, उसका एक ब्रांच को मैं तुम्हारे ओरिजिनल कोड के मास्टर ब्रांच में मैं डालना चाहता हूँ, राइट। ये दिखा रहा है रिक 2001 वांट्स टू मर्ज 3 कमिट्स। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मैं चेंजेस करना चाहता हूँ वो क्या है। फिर मैंने कमिट्स मारे हैं और ये है, और फिर जिसके पास अभी मतलब राइट का परमिशन है, बेसिकली समवन हु हैज एक्सेस टू द ओरिजिनल रिपो, वो भी चेक करेगा कि हाँ मतलब ये सब कुछ मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो कर देगा, वो ना मर्ज कर देगा। जैसे मैं तुम लोग को एक ना एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। देखो ये तो देखो अभी ओपन है, राइट। बट ये देखो ये ऑलरेडी ना मर्ज हो चुका है, राइट। तो फिर ये वाला एक कमिट था, मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छा यू नो व्हाट, कुछ ना गड़बड़ है तो तुम्हें चेंजेस करने हैं। तो फिर यहाँ पे देखो बातचीत हो रही है कि अच्छा हाँ तुम ऐसे चेंजेस कर, ऐसे करते गए वो मुझे बता रहा है कि अच्छा हाँ देखो ये जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा अगर तुम चेंजेस करोगे तो फिर ये जो लाइन है ये सब चेंज हो जाएंगे, ऐसे
वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ कि देखो तुमने जो बोला उससे उससे ऐसे आ रहा है, मेरा तो काम हो नहीं रहा। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि ऐसे अजीब सा हो रहा है, फिर उसने किया, ऐसे कर करके फिर ये जाके मर्ज हुआ। सो इसलिए गिटहब अच्छा है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे तुम बातचीत कर सकते हो, तुम लोग बता सकते हो, राइट। मैं इस बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ who he is, but via GitHub and via Git I was able to talk to him and tell him कि you know what, ये दिक्कत थी, मैंने उसको ठीक किया, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ये दिक्कत थी, ऐसे करके फिर ये ना मर्ज हो गया। और ये ऑलमोस्ट 10 दिन पहले हुआ था। सो वही, सो इसलिए यू नीड गिटहब एंड गिट सो दैट यू कैन वर्क ऑन लार्ज स्केल। तो जरूरी नहीं कि तुम लोग गिटहब ही करो, ऐसे वेबसाइट्स है, गिट लैब है, फिर और एक गिटिया है, राइट, वहां पे भी तुम लोग अपलोड कर सकते हो, नो वरीज, राइट। सो ये सब हो गया। अब हमें क्या करना था, ओके, अब हमें रिवर्ट करना था, रीसेट करना था और चेकआउट करना था, राइट, ये सब हमें एक्सप्लेन करना था। सो ओके, बेसिकली गेट रिवर्ट, रीसेट और चेकआउट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो मान लो ये जो गेट लॉग है, गेट लॉग में पता है क्या होगा, ओके मान लो कि ये मेरा हिस्ट्री है एंड आई रियलाइज्ड दैट जो ये वाला जो कमिट है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा। ओके मान लो ये जो 2 कमिट है वो मुझे सही नहीं लग रहा, मुझको वापस आना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, आई हैव 2 ऑप्शंस। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिलीट दीज कमिट्स कंप्लीटली, मैं इनको मैं गायब कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, राइट। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर मान लो तुम ऐसे तुम ना बड़े बड़े तुम ना ओपन सोर्स में काम कर रहे हो, राइट, सो चांसेस आर कि तुमने ये सब जो जो तुमने ना कमेंट्स किए हैं ना, वो सब किसी ने ऑलरेडी ना डाउनलोड करके रखा है, वो किसी ने ऑलरेडी ना पुल करके रखा है अपने पास, और फिर वो उसके बाद से वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। अगर तुम बीच में तुम वो सब कमेंट्स हटा दोगे तो फिर उसका काम तो भाई ब्रेक हो सकता है ना। सो देर इज दिस कमांड कॉल्ड गेट रिवर्ट। गेट रिवर्ट क्या करेगा, ये जो दो ये जो 2 रिपोज में जो तुमने काम किया था, उस काम उस काम को वो क्या करेगा, मतलब वो और एक कमिट क्रिएट करेगा यहाँ पे, मतलब और एक कमिट आ जाएगा जो इन सारे काम का ना एंटी है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो तुमने लाइंस ऐड किया है वो यहाँ से वो लाइंस ना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देगा। सो उससे क्या होगा कि ऐसे ना मतलब जो कमिट से बीच में से गायब भी नहीं हुए, यहाँ पे जो भी ऐड हुआ था वो एक कमिट में सब्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर एंड मतलब जो एंड रिजल्ट होगा वो यहाँ पे जो था फर्स्ट फाइल में, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो एक हो गया गेट रिवर्ट और एक हो गया गेट रीसेट। गेट रीसेट इज बेसिकली व्हाट आई एक्सप्लेन कि इन सबको गायब कर देना, राइट। सो यही डिफरेंस है गेट रिवर्ट और गेट रीसेट में। रिमोट का भी हमने बात कर चुके हैं, फॉक्स का भी बात, स्टेटस भी हो गया, लॉग भी हो गया है। जीसी इज बेसिकली कुछ ना कैश आ जाता है, उसको तुम लोग ने गेट जीसी टाइप करके तुम ना क्लीन कर सकते हो। गेट जीसी तुमने एंटर मारा और फिर ये मतलब जो भी ऐसे कैश वगैरह वो ऐसे गायब कर देता है। सो दीज आर द बेसिक्स। तो यहाँ पे मैंने ना वो डाला है कि मतलब मैंने याद है मैं बीच बीच में ऐड कर रहा था, तो जो मैं ऐड कर रहा था उसको स्टेज कहते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो मैंने फाइल्स को एडिट किया है, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब इन फाइल्स को Marik, can you do the slideshow? ओ या यस। सो तो तो देखो मैंने एक फाइल बनाया, वो अभी भी ना अनट्रैक्ड है, वो ना गिट गिट को पता नहीं है कि वो फाइल एग्जिस्ट करता है। तो मैंने उसको ऐड किया। तो अब मैंने क्या किया कि जब मैंने ऐड किया या फिर कोई भी मैंने चेंजेस किया उसको मैंने ऐड किया, तो फिर मतलब वो उसको स्टेज कहते हैं। बेसिकली कुछ भी चीज को ऐड करने के बाद अगर मैं कमिट करूंगा तो गिट को पता होगा कि जो भी चेंजेस मैंने स्टेज में डाले, देखो तो मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, मान लो अ, मान लो मैंने न्यू फाइल बना रहा हूँ, टच न्यू फाइल। बाय द वे टच का मतलब होता है एक ना न्यू फाइल बनाना।
राइट। फिर मैंने विम में गया और मैंने क्या किया, वेट मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ न्यू फाइल को। फिर मैंने कमिट कर दिया न्यू फाइल, राइट। सो अब मैं गेट स्टेटस कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि कुछ भी कमिट करनी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दो चेंजेस करूंगा। मैं विम readme.md में मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू फाइल वाज एडेड, और मैं क्या कर रहा हूँ, विम न्यू फाइल में जाके मैं लिख रहा हूँ हेलो, राइट। सो अब क्या है, अब मैं अगर गेट स्टेटस करके देख रहा हूँ, मुझे पता है कि देखो दो फाइल को मैंने ना चेंज किया है। अब मान लो मुझे मन हुआ कि अच्छा देखो मैंने चेंज तो किया है, बट कमिट में बस मैं एक ही फाइल को करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू git add readme.md, क्योंकि मैं इस या फिर मान लो न्यू फाइल, राइट। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने चेंजेस मैंने न्यू फाइल में किए वही खाली कमिट में डाल। तो गेट ऐड, फिर मैंने गेट कमिट कर दिया और मैं लिख रहा हूँ ओनली न्यू फाइल .txt was changed, राइट। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं गेट स्टेटस कर रहा हूँ, तो ये अभी भी दिखा रहा है, देखो तुमने रीडमी को तुमने ना किया था, तुमने मॉडिफाई, तो ऐड नहीं हुआ। सो द थिंग इज कि जब मैं ऐड करता हूँ तो एक चीज होता है स्टेज, तो वो ना उसमें आ जाता है। तो फिर जब भी मैं अगर कमिट करता हूँ तो फिर स्टेज में जो भी चेंजेस है वो वही कमिट हो जाता है। तो जब मैंने गेट ऐड न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी किया तो मैंने बोला कि भाई स्टेज में तुम ना न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी डाल दो। उसके बाद जब मैंने कमिट किया कि हाँ भाई कमिट करो, तो फिर गिट देखता है कि अच्छा स्टेज में मैंने क्या किया, मैंने चेंजेस डाले, फिर ये उसी को कमिट करता है। सो इसलिए readme.md कमिट नहीं हुआ। तो फिर अगर रुको मैं देखता हूँ कौन से ब्रांच में हूँ, टेस्ट में हूँ, राइट। अच्छा हाँ, बाय द वे रुको, यहाँ पे क्या था, रिक 2001 डमी कोड, राइट। तो यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच है, तो आई वांट टू क्रिएट अनदर ब्रांच हियर। सो व्हाट आई वुड डू इज गेट पुश origin, फिर जो भी मैं ब्रांच का नाम रखना चाहता हूँ, इसका नाम मैंने टेस्ट ही रख देता हूँ, गेट पुश origin टेस्ट। तो अब देखो इधर को दिखा रहा है टेस्ट हैड ये। सो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने रुको मैं रिलोड कर रहा हूँ, वो दिखा रहा है कि देयर इज अ टेस्ट ब्रांच, एंड देखो ओनली न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी वाज चेंज, मतलब एक ही फाइल बस चेंज हुआ है, ये अभी भी पुराने वाले कमिट पे। readme.md इज स्टिल देयर, बट अभी तक बट अगर तुम विम खोल के देखोगे तो देखो न्यू फाइल वाज एडेड योर लाइन, तो वही बिकॉज दिस चेंज वाज नॉट स्टेज्ड, ये कमिटेड हुआ ही नहीं, राइट। सो इसलिए ना मैंने ये वाला मैंने फाइल डाला था, स्टेज कमिट, राइट। फिर से तुमने मॉडिफाई कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, फिर तुम स्टेज कर रहे हो वापस, राइट। हमने एक फाइल को हमने स्टेज किया वापस, फिर हम कमिट कर रहे हैं, फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ न्यू फाइल बना तो वो अनट्रैक्ड है, ऐड करके स्टेज में डायरेक्टली डाल दो। सो वही, तो फिर ये लाइक 4 स्टेजेस है, और फिर मुझे डायग्राम काफी सही लगा तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। तो मैंने और एक चीज, मैंने एक छोटा सा मैंने एक ना वो डाला है, एक मैंने चीट शीट डाला है जहाँ पे आज जो भी हमने कमांड्स बात की हैं वो सारे इसमें है। स्टैश वगैरह हमने नहीं किया डिस्कस, आई थिंक कि स्टैश मतलब बाद में करेंगे। तो जो बेसिक्स है वो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई थिंक दिस सेशन इज ओवर, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask us and I will stop presenting. And we will share these PPT and all the other stuff in your WhatsApp Yes. group. Okay. And I'm floating YouTube tutorials. You can watch these for the advanced. Okay. You can ask your doubts now. Okay. Okay, What first command of should I all, use you to cannot remove? remove a directory in Git. तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ना सारे अंदर के तुम्हें फाइल्स को तुम्हें मतलब हटाना होगा। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज गेट rm and directory
नेम और फिर एक स्टार। तुम्हें बेसिकली ये दबाना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स है, स्टार का मतलब है कोई भी फाइल, राइट। इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं, राइट। तो अंदर जो भी फाइल्स है उसको हटा देंगे। तो सिंस सारे फाइल्स हट गए तो फिर गिट उसको काउंट नहीं करेगा। तुम्हारे हार्ड ड्राइव में वो फोल्डर रहेगा, बट गिट उसको काउंट नहीं करेगा। अगर तुमने फोल्डर बनाया है बट उसके अंदर कोई फाइल नहीं है तो फिर गिट कभी भी उसको शो नहीं करेगा। गिट इज ओनली Git only cares about what files you have and where they are located. It doesn't care about कि कितने फोल्डर्स है क्या है। अगर तुमने कोई फोल्डर में एक फाइल डाल के रखा है तब वो काउंट होगा, राइट। सो ये बात है। और कोई डाउट्स है? सो आई थिंक सेशन फिर एंड कर सकते हैं। अगर बाद में कोई डाउट आए तो फिर ऑफ कोर्स बताना। ये जो भी हमारा ग्रुप है पी क्लब का। And guys, we will be starting a Python series from tomorrow. Like first session will be tomorrow, and then second session will be on Monday, on Sunday, I guess. On Sunday, and other session will be on next Saturday and Sunday. So must join.